حیدر 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 علی علی اور مولا مولا بولے گا. یہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. اور ہوتی ہے ایمان کی دشمن, ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری, ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا. ہم ماتم سرور کا اثر دیکھ رہے ہیں, ہم ماتم سرور کا اثر دیکھ رہے ہیں. رک کر کے زمانے میں جدھر دیکھ رہے ہیں کہ ہم ماتم سرور کا اثر دیکھ رہے ہیں. رک کر کے زمانے میں جدھر دیکھ رہے ہیں. اور کل بھی جمع تھا ذکر علی, آج بھی جمع ہے. کہ کل بھی جمع تھا ذکر علی, آج بھی جمع ہے. جھکتی ہوئی دشمن کی کمر دیکھ رہے ہیں, جھکتی ہوئی دشمن کی کمر دیکھ رہے ہیں. سلوات. میں کیا کروں بیاں فضیلت حسین کی, کہ میں کیا کروں بیاں فضیلت حسین کی. اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی, کہ اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی. اور کہتے رہے بار بار میں حیدر کا لال ہوں, کہ کہتے رہے بار بار میں حیدر کا لال ہوں. مانی نہ یزیدوں نے حقیقت حسین کی, مانی نہ یزیدوں نے حقیقت حسین کی. اتنا کہ کیا اہل ستمگر تیرے واسطے مولا, کہ کیا اہل ستمگر تیرے واسطے مولا. ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے, ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. یہ نعرہ حیدر نہیں ہوٹوں پہ تمہارے, یہ نعرہ حیدر نہیں ہوٹوں پہ تمہارے. یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے, اثر بول رہا ہے. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے, کہ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے. اس نواسے پر محمد کو ناز ہے, اس نواسے پہ محمد کو ناز ہے. یوں تو لاکھوں سر جھکے سجدے میں, لیکن یوں تو لاکھوں سر جھکے سجدے میں, لیکن حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ کربلا کو ناز ہے. حسین نے وہ سجدہ کیا جس سے خدا کو ناز ہے. سلوات لیا ہے جس کے سجدے کا خود آدم نے بوسا, لیا ہے جس کے سجدے کا آدم نے خود بوسا. خدا کے پیش نظر وہ جبیل کس کی ہے, خدا کے پیش نظر وہ جبیل کس کی ہے. علی کے باپ کو کافر بتانے والے بتا, علی کے باپ کو کافر بتانے والے بتا. طواف کرتا ہے جس زمین پہ وہ زمین کس کی ہے, طواف کرتا ہے جس یہ ہے اصغر, یہ ہے اکبر, وہ علم بردار. یہ ہے اصغر, یہ ہے اکبر, وہ علم بردار ہے. ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر کر رہا. یہ ہے اصغر, یہ ہے اکبر, وہ علم بردار ہے. ظلم حیرت میں ہے کتنے حیدر کرار ہے. تو خود کو جھولے سے گرا کر بول اٹھا بے زبان, کہ خود کو جھولے سے گرا کر بول اٹھا بے زباں. ہم بھی پوتے ہیں علی کے, ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم بھی پوتے ہیں علی کے, ہم بھی ذمہ دار ہیں. تو اے بابا آپ نے آواز اب دی ہے, ہمارا کیا قصور. کہ اے بابا آپ نے آواز اب دی ہے, ہمارا کیا قصور. ہم تو کب سے جان دینے کے لیے تیار ہیں. ساری دنیا میں ہے بے مثل, ساری دنیا میں ہے بے مثل قبیلہ میرا, کہ ساری دنیا میں ہے بے مثل قبیلہ میرا. موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ میرا, کہ موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ میرا. تو رک ابھی موت ذرا دیر ابھی دور ٹھہر, کہ رک ابھی موت ذرا دیر ابھی دور ٹھہر. تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا, کہ رک ابھی موت ذرا دیر ابھی دور ٹھہر. تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا. تو معجزہ
कम तो नहीं है ये दमे तश्नालबी, के मौजिज़ात कम तो नहीं है ये दमे तश्नालबी, मश्क दांतों में रही होठ ना भीगा मेरा, के मौजिज़ात कम तो नहीं है ये दमे तश्नालबी, मश्क दांतों में रही होठ ना भीगा मेरा, और बख्शवाने को खता पाँव पकड़ रखे हैं, कि बख्शवाने को खता पाँव पकड़ रखे हैं, 14 सदियों से गुनहगार है दरिया मेरा, 14 सदियों से गुनहगार। फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبله بالأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد. مطلب فیصلے کی آخری مجلس یہاں ہے. ایک مجلس جو پہلی ہوئی تھی جناب سکینہ صاحب آ رہے تھے، شہادت سلسلے سے ہوئی تھی. اور سب سے پہلے جتنے حضرات یہاں مرشدہ بیٹھے ہیں ان سے میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پریشانی دیکھیے 2-4 دن ایسا ہوا کہ لائٹ چلی گئی ہے، اس کی وجہ کوئی پریشانی ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ فرشدہ ایسی جگہ ہے اگر پریشانی نہ ہو پھر فرشدہ کا مرا ہی نہیں. حسینی کبھی اس سے گھبراتا نہیں، حسین کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا. اس لیے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو واقعات کربلا کے فضائل سے ہی زندہ ہیں. اگر دیکھا جائے کہ اگر اسلام سے اس کو نکال دیا جائے کچھ نہیں ہے. بھلے کوئی ٹیکنالوجی کرے، آج پوری دنیا فرقہ جعفریہ کا چھوڑیے، الگ الگ آپ دیکھیے، ابھی اربعین کو دیکھیے کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ہر مسلک کے لوگ آ رہے ہیں. آخر ان کو وہاں کچھ مل رہا ہے تبھی تو آ رہے ہیں. آپ غور کیجیے گا، ہمیں بھلے دیر سے ملے لیکن ان کو پہلے ملنا. یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم جو ہے گھبرا جاتے ہیں. مولا عباس کی طرف گئے، مانگ رہے ہیں بہت زیادہ، اے باب الحوائج ہمیں دیر ہو، کوئی دعا مانگیے. کبھی کبھی ایسا ہو کہ ہمیں دیر ہو جاتی ہے. باب الحوائج جانتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ملے یا نہ ملے اس در سے وہ ہٹے گا نہیں. لیکن دوسرے کو اس لیے فوراً ملتا ہے کہ وہی آسرا لگا کے آیا ہوا ہے، تو آسرا جو لگا کے آیا مولا اس کو فوراً دیتے ہیں کہ پھر جائے گا تو اپنے بھی ملے کی تعریف کرے گا اور دوسروں کو بھی کہا اس در پر آؤ. ہو سکتا ہے کہ دوسرا کون اس در پر آ کے کس مقام پر پہنچ جائے. کچھ صلوات محمد. ایسے ایسے موجودات یہاں پر زیاد کرنے والے حضرات بیٹھے ہیں، جیسے لٹن بھائی ہیں اور صاحب سلم ہیں. اب ان لوگوں سے پوچھیے کہ اربعین آیا ان کا دل کتنا تڑپتا ہوگا. اس لیے ان کو ہر منظر وہاں سے آتا تھا. ہم لوگ بھی بہت خوش نصیب ہیں. دیکھیے موبائل پر اور تذکرہ چل رہا ہے، بات صحیح ہے، حقیقت ہے کہ موبائل پر جو برابر مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں یہ ضروری بھی ہے. اس لیے کہ موبائل میں دونوں چیزیں ہیں، بری بھی چیز ہے، اچھی بھی چیز ہے.
लेकिन आज मोबाइल ही का क्रम है, ज़ियारत पर नहीं जा रहा है, वहाँ के हालात देख रहे हैं। और देखने का तरीका होना चाहिए, उसमें अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। आप जो है जैसे अंदाज से देखिएगा सवाब भी मिलेगा, उसमें कुरान की तिलावत भी है, नौहा भी है, मजलिस भी है, सब कुछ है। लेकिन ये है कि अगर वाकई में हुब्बे अली हो, हुब्बे मौला रखने वाला हो, तो वही चीज़ देखेगा जो उसके से फ़ायदा उठाए। हो सकता है कि कभी कभी देखिए नज़र है इंसान की, अगर ऐसा गलत आ भी गया तो फ़ौरन इस्तग़फ़ार करेगा। जैसे ही इस्तग़फ़ार करेगा परवरदिगार आलम से खत्म आ, इसलिए कि परवरदिगार आलम सबसे खुश उससे होता है जो अपने गुनाह को याद करे। गुनाह को देखिए कहा गया है कि मासूम का फल है कि जब भी बिस्तर बजाओ तो बावजूद होते जाओ। बच्चों के लिए देखो बहुत फायदा है। इसलिए कि सलमान फारसी से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं रात भर इबादत करता हूँ, पूरी कुरान की तिलावत करके सोता हूँ। तो लोगों ने मौलाना कहा कि देखा, जब लोग सोचा कि भाई रात में कुरान पढ़ते होंगे, लेकिन लोगों ने देखा कि भाई खराटा खींच रहे हैं। भाई लोग देखते भी तो जाके कि कह रहे हैं ज़बान से, चल के देखा जाए। देखा कि और सब सोए हुए हैं, ये करेंगे रात में तिलावत। तो जो लोगों ने पूछा मौलाना कायनात ये तो बराबर करते हैं, सलमान से पूछ लो। सलमान को बुलाया गया, क्या कि हदीस याद नहीं मासूम कि बावजूद होकर सोओगे तो रात भर इबादत में गुजरेगी। सूरह तौहीद की तिलावत करके सोओगे तो कुरान की तिलावत मिलेगी तुमको। एक बार किया तो एक हिस्सा कुरान, 2 बार किया 2 हिस्सा कुरान, 3 बार किया तो पूरी कुरान की तिलावत। तो बावजूद होकर सोना नौजवान, लेकिन बावजूद होने में कोई देर नहीं रहेगा। मुश्किल से देखा है तो 5 सेकंड का वक्त। आई इस वक्त तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ बेसिन ना हो, जहाँ पानी का इंतजाम ना हो। पहले के बुजुर्गों से सोचिए कि जाके वजू करने की कितनी मशक्क़त उठाते थे। कुआँ था, रस्सी से पानी खींचते थे, मटके में रखते थे। ठंडे के दिन में जब मटके में जाते थे तो हाथ एकदम ठंडा हो जाता था। लेकिन क्या है, हाँ एक चीज़ है बच्चों के लिए, बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं कि रिस्क में इजाफा करना है तो भोर में उठिए, सुबह उठिए एकदम। ये लेकिन मासूम का कौल है कि रिस्क में इजाफा करना है तो सुबह उठिए, इल्म में तरक्की करना है तो सुबह उठिए। इसलिए कि ये सुबह सोना जो है, आजकल जो हमारा माशरा जो है, हम अपने ही ऊपर दूसरे वक्तियों का हैं, जिस दिन काम रहता है उस दिन सुबह चले जाते हैं, जिस दिन काम नहीं सो जाते हैं। क्योंकि इसलिए कि इंसान को सबसे पहले अपने को देखना चाहिए। एक आलमगीर का वाक़या, उसके बाद से फिर इस हदीस पर गुफ्तगू होगी। एक लड़का जो है बहुत गुड़ खाता था। अब गुड़ खाने से होता क्या था, जानते हैं कि जख्म बहुत बदलता है। उसकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसे बरसात होगा तो हम भी बहुत खाएँ बचपन में, उसका असर हमारे ऊपर है कि यहाँ से लीजिए। तो उसकी माँ ने सोचा कि बहुत बड़े आलिम हैं, चले इनके पास, हो सकता है कि बच्चा इनके कहने पर जो है मान जाए। लेके गई, पूरा वाक़या उसने कहा कि आप हिदायत कर दिए, बच्चा मान गए। इसलिए कि आपको आपका तस्करा बराबर करता है कि बहुत इज्जत आलिम है। उन्होंने कहा कि परसों लेके आना। बात समझ नहीं पाई, चली गई। फिर परसों लेके आई, उस दिन हिदायत किया, बच्चे ने जो है उस दिन सकस किया गुड़ खाने। वालदा ने पूछा कि आए आलिम जी, हमें समझ में आए आका, आए किबला, हमारे समझ में नहीं आई कि उस दिन जो है आप क्यों नहीं इसकी हिदायत की। कहा कि कैसे मैं हिदायत करता, मैं खाने के बाद फ़ौरन गुड़ खाया था। तो हिदायत मैं कैसे करता, जो काम मान ली हम नमाज न पढ़ें और दूसरों से कहे नमाज पढ़िए तो फ़ौरन कहेगा पहले अपने को पढ़िए। हमारा बच्चा नमाज न पढ़े, हम दूसरे के बच्चे से कहें कि नमाज पढ़िए तो फ़ौरन कहेगा कि पहले अपने बेटे को संवारें। ये हकीकत है। लेकिन एक बात और बच्चों को कह दें कि इस चीज़ का ख्याल नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए। वो कह रहा है, क्या कह रहा है ये सोचिए, ये मत देखिए वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए करने पर जाइएगा, वो कुछ भी कह रहा है तो आपके हक के लिए कह रहा है। मान ली किसी की हिदायत कामयाब है, भाई ने कर दी, तो इस पर्पज से हिदायत कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारी बात मान जाओ। और जब बात मान जाओगे, मान लो नमाजी के लिए कहा, उनके कहने पर आपने नमाज पढ़ लिया, आपको तो अजर मिल ही रहा है, अब उनको भी अजर मिल रहा, आप ही को अजर नहीं मिल रहा है, आपके वालिदैन को भी अजर मिलेगा। इसलिए कि बच्चे जो काम करते हैं
उसका अज्र वालिदैन को मिलता है। सलवात मोहम्मद वाले नहीं, मैंने हदीस बयान की इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीहुल निजात, हुसैन जो है हिदायत के चिराग हैं और सफ़ीहुल निजात। आज हुसैन हिदायत के चिराग न होते, कहाँ से लोग यहाँ मौजूद जो हैं, ये हिदायत का ही कमाल है। हिदायत का कमाल न होता तो कितने पहले से लोग आए हुए हैं, आज कब तक बैठ के इंतजार करेंगे। सब ये इंतजार करेंगे, ये नहीं है कि जो भी गुफ्तगू यहाँ होगी वो अहले बैत की गुफ्तगू होगी, कुरान से गुफ्तगू होगी। हाँ, कोई भी बात होगी यहाँ पर इसलिए होगी। तो यहाँ पर सोचिए कि हिदायत के चिराग हैं मौला हुसैन, जो फर्श पे आया तो यहाँ कुछ लेके ही जाएगा। इसलिए कि यहाँ से चाहे नवाखानी हो, चाहे पेशखानी हो, चाहे मिंबर से जो बयान करेगा वो कुछ दे के ही जाएगा, बगैर दिए हो जाएगा नहीं। अब यही है कि आपको उस अंदाज से अमल करना है। मौत का तस्करा कामयाब है कि ये हो सकता है कि मौत से कुछ डरते हैं, तो डरना नहीं चाहिए। इसलिए कि बहुत अच्छी बात यही फतमन्नाहुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। तमन्ना के मतलब क्या हुआ, मर थोड़े जाएंगे। तमन्ना में और मरने में बहुत फर्क है कि नहीं है। तमन्ना के मतलब ये है कि आप हमेशा तैयार रहिए जाने के लिए। ये थोड़े जब तैयार है तो फौरन बुला लिया जाएगा, नहीं बुलाया। जब आपका है तभी बुलाया जाएगा। टाइम एकदम फिक्स है, उसके ना आगे होगा ना पीछे होगा। लेकिन मासूम ने कहा है फतमन्नाहुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन, सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। मौत की तमन्ना क्यों है? इसलिए अब तस्करा करना है कि मौत से कुछ समझिए। इसलिए कि हुसैनी कभी मौत से घबराता ही नहीं। मौला हुसैन का चाहने वाला कभी मौत से नहीं घबराएगा। इसलिए कि डर ही ऐसा है। अरे हम तो बहुत बड़ा करम अल्लाह का है कि हम उसका बहुत बड़ा करम है कि हम ऐसे जगह मौजूद हैं कि एकदम खुला आज़ादारी करने का आपको मौका मिलता है। जुलूस निकाल लीजिए, चाहे ताजियादारी की मजलिस बर्पा कर लीजिए। लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि सोचिए लोगों ने कैसे कैसे गुनाहगारी की। अभी सऊदीया में जो है ऐसे हालात हैं कहीं कहीं पर कि मुहर्रम में लोग बोलते हैं। एक साल इनके घर में आज़ादारी हुई अंडरग्राउंड में, तो अगले साल दूसरी जगह होती है। इसलिए कि ऐसा ना हो कि छापा पड़ जाए तो वहाँ की सजा है कि अगर छापा पड़ गया आज़ादारी करते हुए पकड़े गए आप, तो फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। तो उनके दिल को सोचिए। आज हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि वाकई में देखा जाए कि हिंदुस्तान इतना आज़ादारी जो है अच्छे से कहीं नहीं होती, आप फ्री होती है, कोई डर नहीं है। आज बगल में पाकिस्तानी मुल्क है, हम तो आप जो है आते हैं तो हम ये मालूम है ना कि हम घर वापस जाएंगे। लेकिन वहाँ कहीं कहीं ऐसी जगह है कि जो फरशदा पाया है उसको ये उम्मीद नहीं कि हम घर वापस जाएंगे। लेकिन ये है कि एक लोग डरते नहीं हैं। आज मजमे में कोई कमी नहीं होगी। एक वाक़या मिलता है कि अच्छा आज़ादारी में जो है बमबारी हुई, बहुत लोग वहाँ मर गए। तो पता चला कि दूसरे दिन लोगों को डर था मीडिया वालों को कि आज कोई नहीं आएगा। पता चला कि उससे ज़्यादा लोग वहाँ आए। इसलिए कि वो आए इसलिए कि अगर बच गए तो अगले साल फिर मौला का गम करेंगे। अगर चले गए तो फिर वहाँ मुझे सोचिए क्या मिलेगा। सलवात मौला हुसैन नजात की कश्ती। बेशक कश्ती की मिसाल मेरे लिए ये फरशदा पाया, वो नजात पा गया। इसलिए कि यहाँ जो बैठे हैं इस वक्त उनके क्या मर्तबा वहाँ होगा, फरशदा बैठने वालों का, वहाँ से रहमतों का नुज़ूल होगा। आपके बगल में कौन कौन बैठा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है ना भैया। ये सबसे बड़ी बात है कि खातून जन्नत क्या मर्तबा है। खातून जन्नत को घर बुलाना है तो मौला हुसैन की फरशदा की शादी। अब इससे बड़ा मर्तबा क्या होता है। 8वें इमाम के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू, इसलिए क्या नजर मौला हुआ है। इसके बाद अब शायद 8वें इमाम की तलबी तारीख अपने 8वें इमाम
वो जो है मामून रशीद जो है, देखिए इस्लाम में जो ये बादशाह गुजरे हैं कभी कभी बहुत बड़े सियासत से काम किए। मामून रशीद का दौर ऐसा था कि इमाम की शोहरत हो रही थी, तो देखा कि क्यों नहीं इमाम के हवाले ही तख्त कर दिया जाए, इसलिए कि उसके बाकी लोग हो रहे थे। तो देखिए कितनी सियासत चला कि इमाम के हवाले तख्त कर देंगे, हुकूमत हमारे हाथ में रहेगी, इमाम के जरिए हम हुकूमत करेंगे। हुकूमत करेंगे तो उसके जरिए सबके दिमाग में है कि भाई हुकूमत में इमाम है। आज जानते हैं कि इमाम अहले बैत जो है कभी तख्त के लिए, तख्त ताज के लिए कहीं से लड़े नहीं है, कहीं उसकी लालची नहीं की है। क्या बात है, कहीं लालची ताज के लिए नहीं लड़े। कभी लालच की है तख्त ताज। अगर लालच करनी होती तो मौलाए कायनात के हाथ में इतनी ताकत थी कि सरवर कायनात के बाद कोई नहीं ले सकता था, जुल्फ़कार थे, लेकिन सब्र किया। और वही बताया कि सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। कुरान के इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह हर सब्र करने वाले को। आज वही सब्र का नतीजा है कि पूरे दुनिया में अली अली हो रहा है, पूरे दुनिया में हुसैन हुसैन हो रहा है, पूरे दुनिया में अहले बैत का तज़किरा हो रहा है। सलावत मोहम्मद वाले मौला को जो है बुलाया, मौला निकले। करते क्या थे ये बादशाह और लोग थे कि मौला को जो है कैसा कैद करते थे। जैसे मोहल्ला है, मोहल्ले के बाहर फौज लगा दिए, फौज लगा दिए। ये भी देखने में नहीं है कि कैद है, लेकिन पता चला कि कोई उनसे मिल नहीं सकता है, कि कैद खाना ही नहीं हुआ। लेकिन मौला को बुलाया, मौला निकले, मौला चले हैं। तो जब मालूम हुआ कि सरवर कायनात का 8वां वसी आज आ रहा है, बादशाह ने बुलाया है तख्त ताज हवाले करने के लिए। तो जानते हैं कि हदीस लिखने वाले जो होते हैं, बहुत दिन के बाद मौका मिला कि आज कम से कम अहले बैत की ज़ियारत भी होगी, इमाम की ज़ियारत भी होगी, इमाम से कुछ सबक मिलेगा। सब तारीखदां जो है कलम कागज लेके चले, मौला चले हैं। चलते चलते थोड़ा जो पीछे पीछे लोग दौड़ रहे हैं कि मौला कुछ तो बयान कीजिए, मौला कुछ तो बयान कीजिए, मौला कुछ तो बयान कीजिए। लेकिन जानते हैं इमाम क्या होता है, इमाम देखता है कि पहले सब के सब आ जाओ तब तो कुछ बयान किया जाए, ये बात सब तक पहुंचे। सलवात मोहम्मद वाले देखिए मौला सब तारीख पीछे आ गए। तो मौला ने निकाह हटाया, कहा जानते हो ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है। क्या है? एक किला है। मौला ने महल नहीं कहा, घर नहीं कहा, किला का मिसाल दिया। कहा कि ला इलाहा एक किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो निजात पा गया। अब मुअर्रिख बहुत खुश हो गए कि अब क्या है, अब तो ला इलाहा इल्लल्लाह किला मिल गया, हम निजात पा गए, तारीख लिख लिए। फिर मौला ने नकाब बोल दिया, फिर मौला की सवारी चलते लग गया। अब फिर पीछे पीछे गया मौला, एक तो मौला ने अब जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी, कह लिए कि जो दाखिल निजात पा गया। निजात का मतलब क्या? जन्नत। दुनिया जो है जन्नत के लिए परेशान थी। आगे मौला बढ़े, मौला पढ़ने के बाद फिर जो है फिर नकाब हटाया, कहा कि लेकिन एक शर्त है। जब शर्त की नाम सुने तो सबके चेहरे से जो है स्याही पड़ गई, इसलिए कि अब कैसी शर्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमने पढ़ लिया, अब शर्त कैसी है कि बगैर इस शर्त के जो है हम किले में दाखिल हो ही नहीं सकता। सलवात मोहम्मद वाले ये काफिला पढ़ते हुए ईसापुर पहुंचा। ईसापुर में मौला रुके, कहा कि मैंने अब सिलसिला बताया। देखिए सिलसिला ज़हब हदीस है, इसके मतलब ये सिलसिला जो है हर इमाम से होते हुए 8वें इमाम ने बयान किया है। अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, करते हुए मौलाए कायनात के पास आए। मौलाए कायनात ने सरवर कायनात ने, सरवर कायनात ने जिब्रील के जरिए, जिब्रील अल्लाह के पास, इसलिए कि वमा यंतुकुल हवा इन हुआ इल्ला वही हुआ। मेरा हबीब उस वक्त तक कलाम करता ही नहीं जब तक कि आने वही ना। इसलिए कि सरवर कायनात जो कहते हैं अल्लाह की मैं सलवात मोहम्मद वाले। शर्त क्या है किले में दाखिल होने का? ला इलाहा
इल्लल्लाह कि लेकिन एक शर्त है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की मवद्दत, बगैर मवद्दत के ना ला इलाहा इल्लल्लाह मिलेगा ना मोहम्मद रसूलुल्लाह मिलेगा जब तक कि आप अलीनुल्लाह ना पढ़िएगा। इसलिए कि अलीनुल्लाह पढ़ा आपको मोहम्मद भी मिल गए, अल्लाह भी मिल गया। सलवात मोहम्मद वाला पहुँचे बादशाह में मामून रशीद के तख्त हवाले कर दिया। तख्त हवाले करने के बाद फौरन जो है मौला सलवात मोहम्मद तख्त हवाले कर दिया। उसके बाद से जो है ऐसा हुआ कि जानते हैं कि जब बात देखा कि तख्त बैठा ले तब कुछ ना कुछ जो बुग्जी होते हैं तो सोचा कि मौला के कहीं ना कहीं से एग्ज़ाम ले लिया जाए। अरे तुझको मालूम नहीं है, तो मौला ने ज़बरदस्ती तख्त लिया है। मौला को तख्त की ज़रूरत नहीं थी, मौला तो कहीं बैठा है, तख्त उसके लिए हाजिर है। इसलिए कि मौला ये मत सोचिए कि मौला कभी तख्त उसके लिए हाजिर है। कहा या मौला या इमाम कहत पड़ा हुआ है, कहत पड़ा हुआ। असल में मौला को बनाया, लेकिन ये जानते थे कि बादशाह ये भी है। जब कहत पड़ा तो लोग मामून रशीद के पास आए में अभी तो बादशाह हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में कुछ दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। कहत पड़ा हुआ है, वो तो जानता था कि हमारे बस में कहाँ है, हम तो सिर्फ गज़वी तख्त पर बैठे हुए हैं। आखिर वारिस तो आ चुका है, उसी से मदद मांगनी पड़ेगी। इमाम के पास भेजा, इमाम आए, कहा कि ठीक है बारिश होगी, लेकिन शर्त यह है कि पूरे शहर में ऐलान कर दो कि एक सहरा की तरफ सब के सब चले, मैं भी आऊँगा। गए मौला, जाने के बाद वहाँ मौला पहुँचने के बाद मौला ने जो जानते हैं किससे दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में कौन कर रहा है, वक्त का इमाम कर रहा है। कौन कर रहा है, वक्त का इमाम दुआ कर रहा है। जैसे मौला ने इशारा किया बादल चलने लगा। बादल जब चलने लगा तब मामून रशीद परेशान है, पब्लिक देख रही है। थोड़ी देर के बाद खूब बारिश हुई। लेकिन जानते हैं कि जब कुछ ऐसा इमाम हुआ के साथ इमाम ने मौजदा किया कि फिर आके मामून रशीद से लोगों ने कहा ये कोई बड़ी बात है, बगैर अल्लाह की मर्जी कुछ होता ही नहीं है। जानते हैं कि जिसके दिल में बोझ होगा, लोगों ने कहा मामून रशीद की बात सही है। इमाम को बुलाया, इमाम ने कहा कि भाई ऐसी बात है कि तो अल्लाह की मर्जी थी, तो अल्लाह की मर्जी थी। जैसे इमाम ने जो है सामने देखा एक शेर बना हुआ था, अभी इमाम ताक रहे हैं, इशारा नहीं किए हैं, जब तक शेर नमूदार होने लगा। कहा कि ये बताओ, जब वो आया अब मामून ने कहा कि अरे उसको रोकिए, नहीं तो क्या है कि हमें खा जाएगा। तो मामून ने कहा कि वो तो अल्लाह की मर्जी थी, ये किसकी मर्जी है? जानते हो कि अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन अल्लाह ने पूरा पावर हमारे हवाले कर दिया है। हमने उसको इशारा नहीं किया है, सिर्फ देखा है। वो समझ रहा था कि अब मौला जो इशारा करेंगे जब तक उन्हें मुदा सलवात मोहम्मद वाले। एक और वाक़या उस पर रतन साहब, एक बार मामून रशीद जो है समंदर की सफ़र बजा रहा है। अब तो मान गया ये ऐसी हस्ती है, और जानते हैं कि समंदर में कब तूफान आ जाएगा, कब जहाज डूब जाएगी, कोई ठिकाना नहीं। तो सोचा कि इमाम से जो है कोई कुर्रा लिखवा लिया जाए, कोई दुआ लिखवा लिया जाए, जब तूफान आएगा तो उसको पढ़ लेंगे। हम जो है भेजा अपने कासिद को, कासिद आया। कासिद के आने बाद जो है अब जो है आया तो बात किया। मौला जो है वहाँ पर थे नहीं, मौला अंदर थे। जानते हैं कि जो मौला का गुलाम भी होता है, उस सोबत में रहते रहते उसको भी अल्लाह इतना खिदमत मौला की करेगा, परवरदिगार आलम उसको भी कुछ हुनर दे देते हैं। जब जो है अब देखा कि मौला अंदर है, एक कागज़ उठाया, आए जो है पूरा लिखा, लिख के कहा कि ले जाओ, लेके चला गया। जब आया वो तो समझा मामून रशीद कि मौला ने दिया है, लेके गया। जब समंदर में पहुंचा, जानते हैं समंदर में तूफान आता है, तूफान आया, बहुत ज़बरदस्त तूफान आया।
अब जो खोला तो देखा कि क्या लिखा हुआ है, मारूफ कर्शी जो है कह रहा कि आय अल्लाह इसकी मदद करना, मारूफ कर्शी के वसीले से। अब जो गुस्से में आया कि भाई मारूफ कर्शी तो गुलाम है मौला का, इसको जो है कहाँ से इतना गुस्सा आया, कागज को फाड़ के पानी में डाल दिया। ये नहीं जानता कि मौला का गुलाम है, मौला का वसीला दिया है, उसने मौला का वसीला लिया, अपने अल्लाह का वसीला लिया, इसलिए कि डायरेक्ट वो नहीं वसीला बना, उसने मौला के वसीले से अपने को लिया, अपने को अल्लाह का वसीला बनाया। अब क्या, जैसे ही डाला लहर थम गई, पानी जो है रुक गया। अब मामून रशीद आया, आने के बाद जो है अब तलब किया उसको, कहा कि तूने ऐसा किया क्यों? कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा तूफान में जहाज डूबा? कहा कि नहीं। कहा कि तुम्हारा तूफान में जहाज बच गया ना, अरे तुम्हें जहाज बचने से थे या मौला लिख के दे या मौला का गुलाम लिख के दे। सलवात मोहम्मद। इस तरह से जो लग गया, ये जितने आजाद बैठे हैं सभी इसी तरह से। किसका मुकाम कितना ऊंचा है कोई नहीं जानता है, इसलिए कि इसमें किसका मुकाम है और कितना ऊंचा हम आप नहीं जान सकते, वो खुद जान रहा है कि हमारा मुकाम क्या है। इसलिए कि अपने नफ्स को जो है इंसान अपने खुद पहचानता है। कहा है कि सबसे पहले अपने नफ्स को देखो, तब दूसरे को पर उंगली उठाओ। इंसान फौरन दूसरे को उंगली उठा देता है, लेकिन पता चला कि वो बुराई हमारे अंदर खुद, वही बुराई हमारे खुद हम सलवात मोहम्मद वाले तख्त दिया, मौला के हवाले किया। लेकिन एक दिन ऐसा आया, जानते हैं कि तख्त की लालच ऐसी होती है, कुर्सी की लालच ऐसी होती है कि कुर्सी की लालच जो है, अब ये सोच रहा था कि तख्त तो दे दिया है, लेकिन कैसे इमाम को जो है, आज देखिए इमाम हुसैन खान के अलावा जितने इमाम की शहादत हुई है सब कुछ जहर से। तारीख में मिलता है कि इमाम को अब जो है जहर अंगूर में दिया गया। इमाम जो है जहर हुआ, उसके बाद मौला ने कहा कि जब अपने चेहरे के ऊपर रेदा ओढ़ लूँ, समझ जाके मेरे ऊपर जहर खाली हो जाए। इमाम की शहादत हो गई। इमाम की शहादत के बाद इमाम नवे इमाम जो है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम खबर पहुंची, मौला आए। आने के बाद आपको ये मालूम है कि मासूम का जनाजा मासूमी पा सकता है, मासूम को मतलब कफन मासूमी देगा। इमाम आए, उसको दिया, कफन पहनाया, जनाजा उठा, कफन हुआ। लेकिन अब सोचिए, जिस वक्त 8वें इमाम का जनाजा कब्र में उतारा गया होगा, उस वक्त 8वें इमाम करबला का रुख किए होंगे, कहीं क्या आका हुसैन, ऐ मेरे जज हुसैन, मुझे माफ़ कीजिएगा, इसलिए कि मेरा बेटा मौजूद था, मुझे गुस्ल भी दिया, मेरे कफन भी दिया, मुझे कब्र में उतारा, लेकिन हाय रे आका, आपका बेटा मौजूद रहा, लेकिन बेटे के जो है हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार। अब सोचिए कि किसी का बेटा मौजूद हो और उसके बाबा का लाशा बेगौरो कफन करबला में पड़ा हो, और बाबेदा उसके बाद जो है ये काफिला चला। आज दिल करता है कि रिहाई के बाद का एक मंजर जो है आपके सामने पेश करो। जब चौथे इमाम को यजीद ने बुलाया, बुलाने के बाद अब ये सोचा, इसलिए कि यजीद अपने गलती पर जब ये हो गया कि आमादा हो गया, तो सोचा कि जो ऐसा है कि इमाम को रिहा कर दिया जाए। बुलाया चौथे इमाम को, बुलाने के बाद कहा कि मैं आपको रिहा करते हैं। लेकिन उस वक्त आप ये सोचिए कि चौथे इमाम खुद फैसला ले सकते थे, लेकिन खुफी के पास आए, जनाब जरम ने कहा या भैया मैं भतीजे कहो कि पहले मैं अपने भैया को रोई नहीं हूँ। उसके बाद फरशदा बिछाया। आज ये फरशदा जो हमारे पास पहुँचे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहि ने। लेकिन जब ये काफिला जो है मदीने के लिए रवाना हुआ है, तो सबसे पहले काफिला जो है करबला
जनाब जैनब ने कहा कि पहले करबला चलो, करबला में अपने भैया के कब्र की ज़ियारत करूंगी। और बाबेदा जैसे ही काफिला पहुंचा है, आपको मालूम है कि काफिला पर जो सबसे पहले ज़ाहिर थे वो पहुंचे हुए थे, पहुंचे वहाँ पर ज़ियारत कर रहे थे। अब जो है वहाँ ज़ियारत कर रहे थे, जैसे ही पहुंच खबरें पर लेटे थे, इतने में जैसे दूर से धुन उठी, मौला हुसैन ने कहा, ऐ जाबिर जल्दी से हट जाओ, इसलिए कि मेरी बहन आ रही है। और बाबे आज़ा जैसे ही जनाब ज़ैनब जब पहुंची है, अपने को जो है कब्र, अपने को ऊँट की पूंछ से नीचे गिराया, कहा कि है भैया, अरे मैं तो आ गई, लेकिन आपकी जो है, आपने जो मेरे हवाले जनाब सकीना को किया था, मैं उसे जो है जिंदान में छोड़ आई। जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ भैया आपकी निशानी जो है जरा जिंदान में तो आई, ऐ भैया मैं वो हक अदा न कर सकी, जो मुझे रोना था, यजीदियों ने मेरे जो है रज़ाएं छीनी, मुझे ताज़ियाने लगाए। आपके बेटे चौथे इमाम कुर्बाबेदा, हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न में क़ज़ाए तस्लीम अल-अम्र। हुसैन गरीब हुसैन, हुसैन शहीद हुसैन, हुसैन गरीब हुसैन, हुसैन शहीद शहीद हुसैन, हुसैन गरीब हुसैन, हुसैन शहीद हुसैन। दुहाई दुहाई खुदारा दुहाई, ये दाश्ते बदा में है कैसी तबाही, बहारा है किसने ये खूने मोहम्मद, क़यामत ये ढाई है किसने लाही, जवानों बुजुर्गों को मारा गया है, शहीदों में शामिल है नन्हा सिपाही। हुसैन गरीब हुसैन, हुसैन शहीद हुसैन। या जश्न बरपा यूं अहले हवास ने, शहीदों के लाशों पे डंके बजाए, जला डाले आले मोहम्मद के ख़ैमे, सकीना के मुंह पर तमाचे लगाए, वो बीमार था उसका बिस्तर न छोड़ा, नबी ज़ातियों पर भी घुर्रे लगाए। हुसैन गरीब हुसैन, हुसैन शहीद हुसैन।
عباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین غمزدہ ہے بہن بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن زخم دل سب سے اپنا چھپائے ہو مشق سینے سے اپنے لگائے ہو حسرتوں کے لہو میں نہائے ہو ہائے شانوں کو اپنے کٹائے ہو کیا کروں کوئی بھی آسراب نہیں دیکھ لو بھائی سر پر رداب نہیں بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن آہو ساری ہے گریا ہے فریاد ہے بھائی عباس یہ وقت امداد ہے گھر محمد کا ہو نیکو برباد ہے جلتے خیمے میں بھی مار سجاد ہے ذمہ داری تمہاری سنبھالوں گی میں جلتے خیمے سے اس کو نکالوں گی میں بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن حوصلہ اہل غم کا بڑھاتی ہوں میں ہر مصیبت میں پاس ان کے جاتی ہوں میں اپنے عاشقوں کو ان سے چھپاتی ہوں میں یوں فریضہ تمہارا نبھاتی ہوں میں بے سہاروں کی امید ہوں آس ہوں اب میں زینب نہیں ہوں میں عباس ہوں بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن بیردا ہے بہن آپ پر رہ گئی عرض کرب و بلا ہو گیا ایک طرح ہی پہ محشر باپا غمزدہ بنت ہے درنے جب دی صدا دیکھ لو بھائی سر ہے ہمارا کھلا اے قمر